Students, today we are discussing monopolistic competition. The third form of market. We first discussed perfect competition market, then monopoly market, and today monopolistic competition. Well, a market where a large number of firms produce goods which are close substitute of one another, or where output is differentiated. It is called monopolistic competition market. It may also be called imperfect competition market. In monopolistic competition market, there are some features of monopoly and some of perfect competition. So actually it is a hybrid of monopoly and perfect competition market. There are so many examples of monopolistic competition market in our common life. Number of items of our daily use are being produced by so many firms, like toothpaste, like toilet soap, tea, etc., with different name, with different design, competing one another. What are the characteristics of competition market? The first is existence of many firms. This is same as we discussed in perfect competition. In monopoly there was only a single firm, but here in monopolistic competition there are so many firms in the market. Second is product differentiation. It means all firms are producing the same product but with differentiation, difference of name, difference of design, difference of packing, difference of sometimes material. So there is product differentiation. The third is products are close substitute. What is meant by close substitute? Close substitute means that if you go to a shop to buy a product, for example tea, you want to buy Tapal tea. If that brand is not available, you don't go without buying tea. You may purchase other brands like Yellow Label, like Supreme. So this is the example of close substitute. The fourth is the demand or AR curve of the firm is fairly elastic. The average revenue curve, price curve or demand curve of the firm under monopolistic competition is fairly elastic as compared to monopoly market. It is because of the reason that so many firms exist in the market, and if you decrease price, for example, so your output will increase larger, because so many consumers from different firms when start buying your product, so it increases your output. So with small
decrease in price, your output increases more. So this is the reason of fairly elastic demand curve. The fifth is there is no restriction on entry and exit of a firm from industry. New firms may come into the industry and any firm from the existing firms may leave the industry. So these are the characteristics. Come on the next slide. The producers differentiate their product through name, packing, design. I just told you that in monopolistic competition there is fairly a large number of firms producing the same product. मैंने आपको भी कुछ देर पहले एग्जांपल बताई कि हमारे रोज़मर्रा लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं. टेक द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक फ़ैन फॉर एग्जांपल. इतने फर्म्स हैं जो ये फ़ैन बनाने वाली, लेकिन डिफरेंट नाम से बना रही, डिफरेंट डिज़ाइन से बना रही हैं, हर एक की पैकिंग अलग है, क्वालिटी में भी सेम है, लेकिन हर एक अपने नाम की वजह से डिफरेंशिएट करती है मार्केट में. अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि चीज़ एक जैसी है. कपड़े की मिसाल ले लें. आप लट्ठा ख़रीदने जाते हैं, 3-4 मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के सामने आपके रखे होते हैं, एक जैसी होती है ऑलमोस्ट क्वालिटी, लेकिन यहाँ क्या है, एडवर्टीज़मेंट समटाइम्स क्रिएट इमेजिनरी डिफरेंस. आप एडवर्टीज़मेंट से कन्विंस होकर बाज़ औक़ात किसी एक ब्रांड का लट्ठा ख़रीद लेते हैं, हालांकि वो दूसरे जो ब्रांड आप उसके साथ रखे हुए हैं वो भी वही हैं. बाज़ औक़ात तो courteousness of the man at the counter that create the difference. दो डिफरेंट शॉप्स हैं. एक शॉप पे आप गए बाय करने के लिए, काउंटर पे जो आदमी डील करने वाला है उसने इस अच्छे अंदाज से आपको डील किया कि आपने वो जो सेल कर रहा था ब्रांड वो आपने ख़रीद लिया, हालांकि वही किसी दूसरी शॉप पे अवेलेबल था, आपने नहीं ख़रीदा. तो ये जो डिफरेंस है ये बिहेवियर की वजह से है. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डिफरेंशिएशन क्रिएट करती हैं. अब आगे आइए कि ये किस तरह से हर फर्म अपनी प्राइस और आउटपुट को डिटरमिन करती है. इंडिविजुअली हर फर्म डिटरमिन करती है अपनी प्राइस और आउटपुट को. कैसे? हमने पढ़ा था कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. ऐसा पॉइंट जहां मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है, इक्विलिब्रियम पॉइंट. बिल्कुल यहाँ भी इसी तरह है कि फर्म उस वक्त इक्विलिब्रियम में होती है, उस लेवल पे प्राइस और आउटपुट डिसाइड करती है जहां उसकी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है. इससे पहले भी मैं आपको बता चुका कि फर्म जब इक्विलिब्रियम में होगी तो इट मे बी आइदर मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट और मिनिमाइजिंग इट्स लॉसेस. यानी अगर तो प्रॉफिट हो रहा है तो उसकी कोशिश होगी कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे, और अगर लॉस की सूरत हाल है तो वो ट्राई करेगी फर्म के उसका लॉस मिनिमम. अब अगली स्लाइड पे आइए. फर्म गोज ऑन प्रोड्यूसिंग टिल इट्स मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. जब तक मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर नहीं हो जाते प्रोड्यूस करती चली जाएगी फर्म. ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां MCMR के बराबर है. बियॉन्ड दिस पॉइंट फर्म नेवर प्रोड्यूस. क्यों?
बिकॉज इट एड्स मोर टू कॉस्ट एंड लेस टू रेवेन्यू। अगर वो प्रोड्यूस करे मज़ीद तो कॉस्ट में इजाफा ज़्यादा होता है, जबकि रेवेन्यू में इजाफा कम होता है, तो लॉस होगा। अब आइए शॉर्ट रन में जो इक्विलिब्रियम होता है उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप जानते हैं कि शॉर्ट रन वो पीरियड है जिसमें प्रोड्यूसर कैन ओनली चेंज its variable factor and there is a limited scope of increase in output just by changing the quantity of variable factor. So there are three possibilities of short run equilibrium. First, firm making supernormal profit. Second, firm making normal profit. And third, firm realizing loss. So let us discuss first possibility, that is firm making supernormal profit. Next slide, firm making supernormal profit. In short run, firm may make supernormal profit when the demand of the product produced by the firms under monopolistic competition is greater than its supply. यूँ समझ लीजिए कि एक प्रोडक्ट है, मुख्तलिफ नाम से बनाए जा रहे हैं मार्केट में, लेकिन शॉर्टेज पैदा हो जाती है, उसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है किसी भी वजह से। तो ऐसे हालात में क्या होगा? ऐसे हालात में प्राइस ज़्यादा होगी और एवरेज कॉस्ट कम होगी। तो जब एवरेज रेवेन्यू या प्राइस आपकी ज़्यादा होगी एवरेज कॉस्ट से, तो आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे होंगे। तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। एमआर थोड़ी स्टीपर होगी क्योंकि हम जब प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे होते हैं, ज़्यादा सेल कर रहे होते हैं, तो हम प्राइस को डाउन करते चले जाते हैं। तो एमआर तेज़ी से कम होती है और एआर आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। फिर हम मार्जिनल कॉस्ट का ख़त बनाते हैं, वो फॉल भी शार्पली करता है और राइज भी शार्पली करता है। फिर हम देखते हैं कहाँ मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट करता है या इंटरसेक्ट करता है। आप अगली स्लाइड है उस पर जो डायग्राम है उसमें देखिए, ई पॉइंट है जहाँ मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट कर रही है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं नीचे एक्स एक्सिस पे, हमें पता चलता है ओ क्यू इक्विलिब्रियम आउटपुट है। फिर हम क्या करते हैं, इसी परपेंडिकुलर को एक्सटेंड करते हैं ऊपर एवरेज रेवेन्यू कर्व तक, और हमें पता चलता है कि ये एवरेज रेवेन्यू टी क्यू है, ओ पी या टी क्यू। अब चूंकि ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, एवरेज कॉस्ट कम होगी, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होगा। तो हम एवरेज रेवेन्यू का पॉइंट जो कि टी है उसके नीचे एवरेज कॉस्ट का ख़त ड्रॉ करेंगे। और कैसे ड्रॉ करेंगे कि ये स्लोली फॉल करता है और स्लोली राइज करता है। अब आप देखिए कि एवरेज कॉस्ट कितनी है, एवरेज कॉस्ट है हमारी टी डैश क्यू, और एवरेज रेवेन्यू कितना है, टी क्यू। तो एवरेज रेवेन्यू चूँकि ज़्यादा है टी क्यू और एवरेज कॉस्ट जो कि टी डैश क्यू है ये कम है, तो पर यूनिट प्रॉफिट हमारा टी डैश होगा यहाँ। और अगर हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू कितना है, ओ पी टी क्यू, और टोटल कॉस्ट कितनी है, ओ पी डैश टी डैश क्यू।
अब टोटल रेवेन्यू में से यानी ओ पी टी क्यू में से अगर टोटल कॉस्ट जो कि ओ पी डैश टी डैश क्यू है माइनस कर दें तो ये हमारे पास एरिया क्या आएगा, पी डैश टी डैश टी पी। मैं आपको पहले भी बता चुका कि ये या तो हमने क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डिस्क्राइब करना होता है। जैसे अगर क्लॉकवाइज डिस्क्राइब करें तो ऐसा कर सकते हैं पी टी टी डैश पी डैश। आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पी डैश टी पी, ये जो शेडेड एरिया है ये टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, फर्म मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह से हो रहा है, उसी तरह हमने पहले AR और MR कर्व्स ड्रॉ की, MC कर्व ड्रॉ की। ये शॉर्ट रन SMC SAC का मतलब है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो जहाँ शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व MR को कट कर रही है, E पॉइंट है, वहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस पे OQ आउटपुट लेवल आ गया, उसे हमने ऊपर एक्सटेंड कर दिया एवरेज रेवेन्यू तक। हमें पता चल गया TQ हमारा जो है एवरेज रेवेन्यू है, OP या TQ। अब चूँकि नॉर्मल प्रॉफिट है, और नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट आपस में बराबर होते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि एवरेज कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट शामिल होता है, तो जब एवरेज कॉस्ट से 100 रुपीज़ है, एवरेज रेवेन्यू भी इतना ही हो यानी प्राइस भी इतनी ही हो, तो फिर फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, फर्म रियलाइजिंग लॉस। अब ये लॉस कब होता है, जब एवरेज कॉस्ट फर्म की ज़्यादा होती है एवरेज रेवेन्यू की निस्बत। अब मार्केट में बाज़ औक़ात सूरत हाल ऐसी होती है कि डिमांड या कॉस्ट कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती, सप्लाई ज़्यादा लेकिन डिमांड कम है। अब प्राइस डेफिनेटली ऐसे हालात में तो कम ही होगी, तो जब प्राइस कम होगी तो आपको लॉस हो सकता है, लेकिन ये शॉर्ट पीरियड का लॉस होता है। तो ऐसे हालात में जब लॉस हो रहा होगा तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे जो डायग्राम बनाई गई है, सबसे पहले एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, फिर मार्जिनल कॉस्ट का ख़त बनाया, फिर जहाँ मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट कर रहा है E पॉइंट, वहाँ से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको फिर हम ऊपर एक्सटेंड करके एवरेज रेवेन्यू तक ले गए। उससे भी ऊपर देखें एक हमने ख़त बनाया SAC, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जो क्या शो करती है कि ये एवरेज रेवेन्यू हमारा OP या TQ है, एवरेज कॉस्ट इससे भी ज़्यादा है, यानी T-Q जो एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज रेवेन्यू जो कि TQ है इससे ज़्यादा है। अब जितनी ज़्यादा है TT- वो ही लॉस है पर यूनिट। और जब हम टोटल लॉस कैलकुलेट करते हैं तो हम जानते हैं कि टोटल कॉस्ट में से टोटल रेवेन्यू माइनस किया जाता है। अब ये टोटल कॉस्ट कितनी है, इस डायग्राम के मुताबिक OP-T-Q, ये है टोटल कॉस्ट, और टोटल रेवेन्यू कितना है, वो OPTQ है। अब OP-T-Q में से OPTQ माइनस कर दें तो दिस कम्स PT-T-P, the shaded area. This is the total loss of the firm. These are the three possibilities in short run. अब आते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में। आप जानते हैं लॉन्ग रन इज अ पीरियड in which new firms may enter into the industry, और जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनमें से कोई फर्म छोड़ के भी जा सकती है। तो देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ फर्म। अब होता यूँ है, शॉर्ट रन में अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं फर्म्स, तो फिर बहुत सारे लोगों को ये मोटिवेशन मिलती है कि हम भी
इसी टाइप का बिज़नेस कोई कर लें, किसी और नाम से ये प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें, तो क्या होगा, शॉर्ट रन में अगर फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं तो लॉन्ग रन में जब कुछ और फर्म्स मार्केट में आ जाएंगी तो टोटल सप्लाई बढ़ जाएगी। टोटल सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, प्राइस नीचे आ जाएगी। और कितनी नीचे आ जाएगी, इतनी के जहां नॉर्मल प्रॉफिट लेवल पे, यानी जहां नॉर्मल प्रॉफिट फर्म्स तमाम कमाना शुरू कर देंगी। और इसके बरक्स इफ़ द फर्म्स आर रियलाइजिंग लॉस, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, कुछ फर्म्स इंडस्ट्री को छोड़ के चली जाती हैं। इससे फिर क्या होता है, सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, और सप्लाई कम होने से क्या है, प्राइस में इजाफा हो जाता है। और प्राइस में कितना इजाफा हो जाता है, जहां नॉर्मल लेवल पे, नॉर्मल प्रॉफिट लेवल पे हमारी प्राइस चली जाती है, और इस तरह से वो जो लॉस हो रहा होता है वो लॉस ख़त्म हो जाता है। तो जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं, कुछ फर्म्स जब छोड़ के चली जाएंगी तो जो रिमेनिंग फर्म्स हैं वो दे स्टार्ट मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट। तो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती हैं फर्म्स। गोया शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं, तो लॉन्ग रन में क्या होगा, विद द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, when supply increases price comes down to the normal profit level, और फर्म्स फिर लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट कमाना शुरू कर देती हैं। इसके बरक्स शॉर्ट रन में अगर लॉस हो रहा है तो कुछ फर्म्स इंडस्ट्री को छोड़ के चली जाती हैं। इससे क्या होता है, सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई कम होने से प्राइस में इजाफा हो जाता है, और फर्म्स जो बाकी रह जाती हैं वो लॉस की सूरत हाल से निकल के और नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाती हैं। सो इन लॉन्ग रन फर्म्स मेक नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक और बात ध्यान में रखिए कि लॉन्ग रन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के ख़त जो हैं वो ज़रा ज़्यादा फ्लैटर होते हैं, ज़्यादा इलास्टिक होते हैं। क्यों? इसलिए कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और लॉन्ग रन में थोड़ी सी अगर आप प्राइस को कम करें तो लॉन्ग रन में आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि आपकी सेल में ज़्यादा इजाफा हो जाए। क्योंकि जब बहुत सारी फर्म्स के लोग आपकी तरफ आएंगे आपकी कीमत कम होने की वजह से, तो आप तो एकदम से एक्सेल कर जाएंगे। तो ये इसलिए आपकी चूँकि सेल बढ़ जाती है, आउटपुट बढ़ जाती है, इसलिए ये जो एवरेज रेवेन्यू का कर्व है या मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है ये ज़्यादा फ्लैटर होता है लॉन्ग रन में। अब आप डायग्राम देखिए, AR और MR को ज़रा ज़्यादा फ्लैटर दिखाया गया है। उसी तरह मार्जिनल कॉस्ट का ख़त ड्रॉ किया हमने। यहाँ आप देख रहे हैं इस पे लिखा हुआ है LMC, L स्टैंड फॉर लॉन्ग रन। इसी तरह एवरेज कॉस्ट के ख़त के साथ लिखा हुआ है LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो सबसे पहले हमने एवरेज रेवेन्यू, फिर मार्जिनल रेवेन्यू का ख़त ड्रॉ किया, फिर हमने मार्जिनल कॉस्ट का ख़त ड्रॉ किया। तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर कहाँ होता है, E पॉइंट पे। यहाँ से हमने नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसको एक्सटेंड करते करते हम कहाँ ले गए, एवरेज रेवेन्यू तक। इससे हमें पता चला इक्विलिब्रियम आउटपुट OQ है और इक्विलिब्रियम प्राइस OP है। तो एवरेज कॉस्ट का ख़त हमने इस तरह से ड्रॉ किया कि ये टच कर रहा है T पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू को। तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पे एवरेज कॉस्ट भी हमारी TQ है और एवरेज रेवेन्यू भी TQ या OP ही है, जिसका मतलब क्या होता है कि फर्म इज़ मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट एज इट्स एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।